still students are joining, let's join them all. And Happy New Year to all of you. Same to you, ma'am. Okay, thank you, Beta. Chalo. So New Year we'll start with applied physics. And today many new students have joined in our class. बहुत सारे पुराने बच्चे थे and many new students have already joined in our class. So all total now 56 students are there in the class. So I don't know what they have studied or not. So we'll start with the introduction of all these things very quickly. Yes, Rishi Mishra, what happened? हाँ पूछिए। ऐसे क्या है? Okay, let us start with the topic. Now, Rishi Mishra, what happened? Why you are not joining? Yes. Yes, dear students, let us see. We are now starting with we're sharing the screen now. Okay. Yes, bache, let us see first of all, I am introducing with the topics and the syllabus of this first semester. Okay, many new students are there. So सबके लिए मैं फिर से ये थोड़ा सा repeat कर रही हूँ. That is, this AP subject stands for this applied physics and applied physics 1. The physics you will study in the first semester, that is known as the applied physics 1. Okay, and under this applied physics 1, the topics will cover these are the topics that will cover. That is interference, diffraction, polarization, lasers, optical fibers, ultrasonics, spatial theory of relativity, and nuclear physics. So these topics we have to cover under this first semester. Okay. So, and all the syllabus generally categorized into 4 units. That is this interference and diffraction are coming under 2 units. First unit covering the topics of interference, diffraction. Second unit consists of the topics of polarization, lasers, and these are your third unit covering the topic of ultrasonics and special theory of relativity, and fourth unit covering the topic of the nuclear physics. So these are the topics we will study in the first semester, and the detailed
Syllabus of these topics are like this. Under interference, we'll discuss the topic. Yes, Sobia, are you there? Sobia? Yes, ma'am. Yes. You see the syllabus, okay? Syllabus dekh lo. What are the topics? Under applied physics, we'll cover all these topics. And कोई new student है जो पहले जो जिसको पता नहीं, again you just have a look of all the topics that we'll cover under this first semester. That is, under interference, we'll discuss the Huygens principle, path difference, phase difference, range width, types of sources, types of interference, and division of wavefront, Young's double slit experiment. Under division of wavefront, we'll discuss the topic of Young's double slit experiment and Fresnel's biprism. Under division of amplitude, we'll discuss thin field interference, wave-shaped field, Newton's ring, and this is under Newton's rings, applications of Newton's ring. And this is diffraction. Under diffraction, we'll cover the definition. Then what is the difference between Fresnel and Fraunhofer diffraction? Then what is Fraunhofer diffraction? Fraunhofer diffraction for a single slit and Fraunhofer diffraction for a double slit. For n slits we'll discuss. Okay, and this is diffraction grating we'll discuss, and that will also perform in your lab. Okay, so these are the topics coming under interference and diffraction. And under polarization, we'll discuss what is Brewster's law, what is Malus law, and what are the methods to produce plane polarized light, and what we mean by double diffraction, what is Nicol prism, and what do you mean by polarimeter. All these things we'll discuss. Then we'll discuss lasers. Under laser, we'll discuss what are the principles of laser and what are the spontaneous and stimulated emission. And one practical laser we'll discuss, that is your helium neon laser, we'll discuss under this topic. And then the remaining topics are fiber optics. Fiber optics may we'll discuss the types of optical fiber and what do you mean by numerical aperture and what do you mean by dispersion. And under ultrasonics, we'll discuss the production of ultrasonic waves. There are two methods. One is piezoelectric method and another is the magnetic section method of production of ultrasonic waves. Okay. So these topics will cover under ultrasonics. And this is theory of relativity. This is totally a new topic for you. For this, we'll discuss what do you mean by this frame of reference and what is Galilean transformation, what are Lorentz transformations, and what is your Michelson-Morley experiment, and what are the postulates of special theory of relativity. Okay, and under this or many more topics we'll discuss. And this is last unit is your nuclear physics. Under this nuclear physics, we'll cover the topics of what are your radioactivity and what is alpha decay, beta decay, gamma decay, what do you mean by half-life, mean life, and what are the different conservation laws, and what are the threshold energy, nuclear fission, fusion, and what do you mean by this is some particle devices, that is a particle accelerator and particle detector. Under accelerator, we'll discuss one cyclotron, other is linear accelerator. And under detectors we'll discuss the GM counter and ionization chamber. So these are briefly the topics we'll study in this first semester. And what books you can follow for this? The books you can follow for these topics are, that is Engineering Physics Volume 1 by Devraj Singh. Generally, this book covers all the topics of the first semester and also experiments related to this. This book also contains previous year questions with answers and many numerical questions and many short questions, all these things it contains. And this is Applied Physics by S.P. Taneja. This was also a good book for this. Both these books are Engineering Physics by Devraj Singh and Applied Physics 1 by S.P. Taneja. Both these books are according to the syllabus of the IP University. Okay, so you have to cover, these two books cover all the topics under the first semester. And another book is there, this is Engineering Physics by Gaur and Gupta. This is a big book, but this is a very good book also. This is a general book for applied physics. This contains the syllabus of first semester, second semester, and some other things also. This is not according to IP University, but this is a good book. If you got this book somewhere, then you can also follow this book. Okay, so these are the books you have to cover, and there are many questions I'm getting from students regarding the books from library.
So library से भी you can also get 4 to 6 books you can get. आपको मिल सकती है, पर आपके थोड़ा सा you have to wait for some time because आपका roll number after getting the roll number from university, क्योंकि admission process as you know still going on. Admission process चल रहा है, and after this process university will send us the roll number of yours. So according to your roll number, after getting the roll numbers, your admit card will, your library card will be issued, and from the after getting the library card you can issue the books from library. अगर आप फिजिकली कॉलेज आते देन इट इज पॉसिबल टू गिव अस, हम आपको भी कभी जरूरत है तो हम बुक्स दे सकते थे अपने पास जो भी बुक है, बट देयर इज नो, अभी तो कोई फिजिकली है नहीं, तो आपको फिर कार्ड बनने के बाद ही एक साथ आके लाइब्रेरी से कलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है देन दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस, बट देयर इज नो ऑप्शन एट प्रेजेंट, सो हम वी हैव टू कंटिन्यू विद द ऑनलाइन क्लासेस नाउ. ओके, तो बुक्स आपको पहले पता था, मैंने आपको ऐसे तो कुछ बच्चों को पता होगा जो पहले से थे, मैंने बताया था, बाकी न्यू बच्चे जो आए हैं अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन सी दिस बुक्स. ओके, नोट डाउन दिस बुक्स. अगर आपको कहीं पे मिलता है आप परचेज भी कर सकते हो, या फिर कहीं पे मिलता है, बहुत सारे सेकेंड हैंड बुक्स भी मिल जाती है मार्केट में, ये भी आप ले सकते हो. 6 मंथ्स के लिए मिलती है, उसके बाद आप वापस कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा कॉस्ट से बुक नहीं, कम कॉस्ट में यू कैन ऑल्सो गेट द बुक्स. ओके, चलो, सो ऑल ऑफ आर सबको क्लियरली सुनाई दे रहा है? हाँ, न्यू स्टूडेंट्स में कौन कौन है? मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, लेट मी चेक योर नेम्स. यस, दक्षराना, आस्था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. हाँ, सो आप सबको बुक का नाम पता था पहले? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am, पद्मा section ma'am बता दिया था. shuffle की गई है, ma'am. New student ने अच्छा, ओके, कोई बात नहीं. तो आप सबको पता है, मतलब यू आर अवेयर ऑफ द बुक्स. ओके, गुड. नाउ so these are the books you have to follow. Now let us come to the topics. Topic में हमारी maximum topics, as you have seen the syllabus, the topics are coming under your optics, and under optics the first topic you have to study, the topic name of the topic is your interference of light. Okay, so what is optics? Can anyone tell me optics क्या है? Yes, can anyone tell me what is optics? Yes. Superpositions of waves. हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सुपरपोजिशन वेव्स, आगे बोलो. खाली सुपरपोजिशन से तो होता नहीं, आगे बोलो. आगे भी और भी कुछ है, कंडीशन है उसका. Of same of different amplitude to get a greater wave of greater or lesser amplitude. Okay. And can any other one? और कोई बोल सकते हो बच्चे? मैम, जो ऑप्टिक्स है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ विजिबल और इंफ्रारेड लाइट को. So optics is the study of light. So it deals with the study of generation of light, propagation of light, and the interaction of light with the material. So this is your optics. Now when we are saying about optics, then what is your optics? Optics क्या है? प्राण. Study of light. So what is light? Light क्या है? Source of Source energy. of energy. It is source of energy. Good. Any other thing? Any other definition? Yes. Kulbhushan, can you tell me what is light? Any other जो common definition होता है light का, जो यहाँ पे भी use होता है? Enables us to see object. Yeah, that is a any other thing? Source of energy by virtue of which we see objects. Yes. Any other definition? Light? Electromagnetic radiation. Yes. Light is an electromagnetic wave. So by considering this electromagnetic wave, we are classifying our optics into two categories. That is
Light can behave like a, पहले आप क्या पढ़ रहे थे? Under reflection, diffraction, you have studied light, rectilinear propagation of light. Then comes the wave nature of light. So before Huygens wave theory, whatever optics you have discussing, they are known as your ray optics. Okay, and after this Huygens wave theory, those parts of optics is known as your wave optics. So your optics is broadly classified into two categories. That is, one is ray optics and another is wave optics. So what is wave optics? Ray optics तो बहुत पता है. Now let us consider the wave optics. By considering light as an electromagnetic wave, whatever we are considering, that is considering the wave nature of light, whatever parts of optics will study, those part of optics is known as your wave optics. Okay, and this wave optics is based on where? The concept of wave optics is based on Huygens wave theory. That is, the concept of wave optics was initially given by Huygens. Huygens first gives the concept of wave optics in his Huygens wave theory. So can you tell me what is Huygens wave theory? मैम की जो एवरी पॉइंट है गिवन वेव फ्रंट पे वो एक्ट करेगा फ्रेश सोर्स की तरह. Yeah. So we are saying that under this wave of Huygens wave theory, क्या कह रहा है? Wave मतलब it is a source of disturbance. जहाँ पे disturbance source होगा वहीं से wave is generating. So when we are saying any wave is generating, then wave is generating मतलब source of disturbance is there. And accordingly we are saying, suppose a light source is there, whenever we are getting light from a point source, then we are getting a geometrical construction that is known as wavefront. Okay, so what is wavefront? Wavefront क्या होता है? Locus of particles of the medium vibrating in same phase. Yes, that is the locus of all the particles which are vibrating in the same phase. Okay, ये सबको पता है? Yes, कार्तिक Yes, गुप्ता, ma'am. दो कार्तिक गुप्ता है. अभी ओल्ड हमारी CSCA में कार्तिक गुप्ता पहले से थे और अभी न्यू ज्वाइनिंग कार्तिक गुप्ता इज ऑल्सो देयर. ओके, दो कार्तिक गुप्ता है. एंड हर्ष में भी शायद हर्ष गुप्ता भी दो है क्या? एक हर्षित गुप्ता, एक हर्ष गुप्ता. ओके, हर्ष गुप्ता, you are also new student in this class. Yes, Harsh Gupta, are you present? हाँ मैम वो नया स्टूडेंट है. आप न्यू हो? यस मैम. हाँ, तो बोलो व्हाट डू मीन बाय वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या होता है? ओके, कैन एनी अदर वन? दैट इज, किसी ने भी आंसर दे भी दिया है. Locus of all the point vibrating in same phase. Yes, locus of all the particles which are vibrating in the same phase. Yes, Ayush, are you there? Yes, Ayush. Yes, ma'am. हाँ, बोलो व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल? हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है? हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है? ये भी बोल दिया बच्चों ने अभी. आप बोलो क्या होता है? ओके, एनी अदर वन? बोलो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है? Every point on a given wavefront act as a fresh source of new distribution. यस, सो ये क्या कहता है? दैट इज एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट कैन अगेन वर्क एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. दैट इज डिस्टर्बेंस मतलब जैसे दिस इज अ सोर्स, कहीं पे एक सोर्स है. आई विल शो द फिगर आफ्टर सम टाइम. अगर कहीं पे ये सोर्स है, देन सोर्स से क्या होता है? एनी नैरो सोर्स, एनी पॉइंट सोर्स इज emitting spherical wavefront. So each point on the wavefront can again work as a source. Like the water surface में जैसे we are disturbing at a point on the water surface, if we are dropping the stone, then that water surface is being disturbed. Then the circular ripples are seen. एक ripple मतलब it is showing a one wavefront. That is locus of all the wavefront vibrating in the, all the particles vibrating in the same phase is in the shape of a circle on the surface of water. Similarly, if you are considering a point source of light, then the locus of all the particles which are vibrating in the same phase, that is in the shape of a sphere. So, in a point source is emitting spherical wavefront and a narrow source is emitting cylindrical wavefront. Okay, and these are the two types of wavefront we are getting from the two sources. So, these are something regarding the Huygens principle. Okay. So under this wave optics, we'll discuss the topics of interference,
डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। सो वेव तो सबको पता है, व्हाट डू मीन बाय वेव एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ए वेव, यू आल्सो नो Yes. दैट थिंग, दैट इज जनरल वेव को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। सो इसमें क्या क्या होता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट एंड a इज द व्हाट इज a, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लिखते हैं जनरल वेव को, a को क्या कहते हैं, Amplitude. Amplitude. इंटरप्रेट करो, हाँ इंटरप्रेट करो, पता तो चलेगा आपको आता नहीं आता, ओके ये तो सबको आता है, ये मैं तो Yes. अज्यूम क्या करते हैं, मुझे पता है कि सबको आता है, तो थोड़ा सा इंटरप्रेट करो तो क्लास में सबको अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, ओके। सो y इज द एम्पलीट्यूड एंड a इज द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द फेज, एंड और क्या फैक्टर एसोसिएट होता है, दैट इज द ओमेगा को एंगुलर, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू 2 pi nu equals to omega, nu is the frequency, and what is your lambda, lambda is the wavelength, and one famous relation for this speed of light is speed of light with wavelength क्या होता है, c equals to V nu is lambda। equal to F. हाँ ये तो कॉमन थिंग है, बार बार ही आएगा, एनीवेयर इसको हम आएगा, we can use that thing। so c equals to nu lambda, c is the speed of light, the value c equals to, c का वैल्यू कितना होता है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। हाँ 3 into 10 to the power 8 meter per second, okay। so this is the value of c, speed of light, and this is the waves we are considering, wave के साथ क्या क्या एसोसिएट होता है, फेज भी होता है, एंड व्हाट डू मीन बाय क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये भी आप सबको पता होगा, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ओके। इन केस ऑफ वेव क्या होते हैं, wave is of two types, one is longitudinal wave, another is your transverse wave। light कौन सी wave को बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी को light wave is belonging, longitudinal और transverse, Transverse wave. ट्रांसवर्स ही होता है, ओके। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दैट टाइप ऑफ वेव इज सेड टू बी अ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, दैट इज साउंड वेव इज कमिंग अंडर लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। बिकॉज ऑफ व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, एयर बीइंग कंप्रेस्ड एंड रेरिफाइड, वहां पे कंप्रेशन रेरिफिकेशन में साउंड वेव प्रोपगेट होता है जो कि सेम डायरेक्शन में होता है, एंड इन केस ऑफ लाइट वेव देयर आर alternate crest and trough are there, that the surface is vibrating in a direction perpendicular to the propagation of wave, and that is known as your transverse wave। then Huygens wave theory में हमने क्या डिस्कस किया, that is the what is spherical wave front, a point source is emitting spherical wave front and a narrow source is emitting cylindrical wave front, and plane wave front क्या होता है, that is a long distance from a, अगर हम किसी भी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एक स्मॉल पार्ट को लॉन्ग डिस्टेंस में ऑब्जर्व करेंगे, देन दैट पार्ट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। ये यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, इंटरफेरेंस में वी डिस्कस कांसेप्ट ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन द चैप्टर ऑफ डिफ्रैक्शन, ओके। देन हाइजेंस प्रिंसिपल आप सबने बता दिया, इज द पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस, बोलो पहले, इंटरफेरेंस आप सबने पढ़ा है, व्हाट इज इंटरफेरेंस, बोलो। अभी Phenomena of बने बी वाले सारे, redistribution of हाँ एनीवन बोलो, वरना मैं पूछूंगी नाम लेके। phenomenon हाँ। of redistribution of energy on account of superposition of light waves from two coherent sources। Yes, coming from two coherent sources। So interference होता है, मतलब क्या होता है, interference of light whenever you are considering, इसमें क्या होता है, that is superposition of waves होता है। So any superposition of wave में तो नहीं होगा, हम यहाँ पे condition क्या लगाएंगे, when the superposition of waves are coming from coherent sources, when we are getting light waves from two coherent sources and when they are allowed to interfere, then that phenomenon is known as the interference of light। so what is interference होने से होता क्या है, because of interference there is distribution of light, redistribution of light, that is the modification intensity of light, and modification intensity of light होता है मतलब because of this redistribution of energy, at certain points we are getting maximum intensity and at certain points we are getting minimum intensity, and that is we are getting, उस चीज को हम categorize कैसे करते हैं, by means of bright fringe and dark fringe। जहाँ पे maximum intensity आ रहा है that is known as bright fringe, जहाँ पे minimum आ रहा है that is known as dark fringe। मिनिमम इंटेंसिटी जनरल उसको हम 0 ले लेते हैं, डार्क फ्रिंज होता है, एंड मैक्सिमम का वैल्यू जनरल हम निकाल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस इसी चीज को जो फॉर्म होता है अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, उसी को ही कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होता रहता है, अलग अलग एक जगह पे सेम नहीं होता, बट इट हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिफरेंट वन प्लेस टू अनदर. ओके, हाँ सोबिया, आर यू देयर बेटा? ओके सोबिया, यस मैम. हाँ अभी समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है? जी मैम. हाँ ओके चलो. सो दिस इज योर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सो हम स्टार्टिंग से अभी देख रहे हैं सारी चीज, अभी टॉपिक ज्यादा हुआ नहीं है, हम फिर से एक बार हमें खाली लुक वेयर कंसीडरिंग द लुक. अभी बताओ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल सुपरपोजिशन? बोलो सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन जनरल बोलो, जो पता है इतना डेफिनेशन मैंने को लिखा है वो. हाँ बोलो. Ma'am, algebraic sum of two हाँ. two coherent source, the waves created by two coherent. Yes, that is when you are saying superposition waves from the wave is a disturbance. Suppose we are considering any point, at any point, suppose we are getting two disturbances are interacting at a single point. एक को डिस्टर्बेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक को दे दिया y1, दूसरे को बता दिया y2. सो इसने whatever was अभी जो जिसने बोला, किसने, आस्था ने बोला शायद. ओके Yes, सो ma'am. हाँ आस्था, जिसने आस्था ने बोला क्या बोला? दैट इज द sum of the two individual displacements. So suppose we are saying at any point P, two disturbances are there. So we are getting one wave equals to y1 and another is y2. So y equals to y1 plus y2. So this is known as the superposition of waves. एक पॉइंट पे हमारी दो वेव का इंटरमिक्सिंग को एक के ऊपर एक इंपोज होने को, दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. एंड इंटरफेरेंस होता है उसका एक स्पेशल केस, दैट इज सुपरपोजिशन हो रहा है बट केस क्या लगा दिया हमने? फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस. एंड कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब सबको पता है, आई थिंक ये सबको पता है. बोलो व्हाट आई मीन बाय टू कोहेरेंट सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? मैम लाइट जो है सेम फेस में हो, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट सेम फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट हाँ. फेस. सेम एम्पलीट्यूड हो. Yes. So coherent sources में क्या होता है? Two sources should have the same frequency, same amplitude. General light में तो same ही रहता है, and are the always in the phase with each other or having a constant phase relationship between the two. Always उनके बीच में जो main चीज आता है उसमें phase. That is, if you take two independent sources, then it is not possible to create. It is not possible to create two इंटरफेरेंस पैटर्न. सो इंटरफेरेंस होने के लिए हमारी प्राइम कंडीशन क्या है? उस इन दोनों के बीच में फेज रिलेशनशिप होना चाहिए. फेज रिलेशनशिप होने से ही इट इज पॉसिबल टू सी गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न. ओके, सो दिस इज द कोहेरेंट सोर्सेस प्राइम क्राइटेरिया फॉर इंटरफेरेंस, टू सो दैट वी कैन क्रिएट ए फेज रिलेशनशिप. अगर सब बताओ, सपोज एक सोर्स है S1 जहां से लाइट आ रही है y इक्वल्स टू a sin omega t, दैट इज जिसका इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड है a. Another source is S2, उसका एम्पलीट्यूड A. So अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा, then intensity because of the two sources S1 और S2 कितना होगा? क्वेश्चन समझो. एक सोर्स से S1 जहां से लाइट आ रही है, एम्पलीट्यूड A, एंड एक सोर्स से अनदर S2 एंड दे आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस, वहां पे भी A एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी लाइट वेव आ रहा है. देन व्हाट इज द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ द टू सोर्सेस? कितना होगा? बोलो इंटेंसिटी क्या होता है? सब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बोलो. इसके साथ साथ हम एक रिलेशन को भी कवर अप करके चलेंगे. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी? ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर. सो हम क्या कहते हैं? दैट इज इंटेंसिटी I इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, I इक्वल्स टू S स्क्वायर. ओके, अगर S1 से जा रहे हैं इंटेंसिटी कितना है? I1 जा रहा है A स्क्वायर, एंड S2 से भी जा रहे हैं, कितना जा रहा है? I2 इक्वल्स टू A स्क्वायर. सो एट ए सर्टेन पॉइंट इंटेंसिटी दोनों का कितना होगा? दोनों सोर्स से हम लाइट एक साथ एक पॉइंट पे डाल रहे हैं, देन उनका इंटेंसिटी कितना होगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2A स्क्वायर. इतना होना चाहिए. नॉर्मल इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, दोनों का सिंपल हमने ऐड कर लिया. अभी बता इंटरफेरेंस होने से क्या हो रहा है, क्या होगा? ये सबको पता है, अभी ये हमने पढ़ भी लिया है. चलो पुराने बच्चे तो बोलो कितना होता है इंटेंसिटी? इंटरफेरेंस हो गया 2A स्क्वायर तो कहीं पे नहीं आता. वी आर नॉट गेटिंग 2A स्क्वायर इंटेंसिटी, बट रादर व्हाट वी आर गेटिंग? बोलो व्हाट वी आर गेटिंग इंटेंसिटी? मैम 4A स्क्वायर हो गया अगर इंटरफेरेंस हो गया. हाँ, तो एक जगह पे कितना आती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाती है 4A स्क्वायर. मिनिमम कितना आती है? 0.
सो दैट वही 2a² जो आता है वो डिफरेंट पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहीं पे 4a² आ गया, जितने सारे ब्राइट फ्रिंजेस है मैक्सिमा है वहां पे कितना आते हैं 4a², एंड जितना सारा मिनिमम है दैट इज अ डार्क फ्रिंज है वहां पे इंट्रोड्यूस 0, दैट इज वही 2a² डिवाइड हो गया, बट यहाँ पे पैटर्न हमें वी आर गेटिंग पैटर्न। ओके, अनदर थिंग इज व्हाट डू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, टर्म्स एसोसिएटेड विद इंटरफेरेंस। बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? वही अभी सब मैंने बता हम जो दिया। इंटेंस हाँ हम जो इंटेंसिटी होती है ग्रेटर देन होती है सम ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो होता क्या है, अगर हमने एक सोर्स ले लिया कितना A1 एम्पलीट्यूड, दूसरा ले लिया A2 एम्पलीट्यूड, देन अगर दोनों का सम ले लेते हैं, दैट इज व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर एंड ट्रफ ऑफ वन वेव ड्रॉप्स ऑन ट्रफ ऑफ अदर, दैट इज अ कंडीशन फॉर क्या होता है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गया मतलब दोनों चीज ऐड हो गए, ऐड हो गया मतलब इंटेंसिटी वहां पे बढ़ गया, एंड दैट इज द केस ऑफ योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, बोलो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? हाँ बच्चे बोलो, सबने पढ़ा सबको आता है और कैंसिल कर देती है एक दूसरे हाँ, को। मतलब अभी उल्टा हो गया, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ गया, अंडर दैट केस इंटेंसिटी जो होता है वो A1 माइनस A2 होता है, यहाँ पे ऊपर की यहाँ पे नीचे की, तो दोनों का जो माइनस हो गया देन दैट इज योर केस ऑफ योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं, देखो ये फिगर देख लो, ये तो हमने पहले भी देखा है, सबको आता है, एक बार फिर से देख लो। एक वेव है, देखो ये जो फिगर है जो माउस के हिसाब से देखो, वन वेव एंड सेकेंड वेव, यहाँ पे 2 वेव्स आर इन फेज, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड देखो बढ़ गया है, एंड यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का एक क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ गया, सो दैट इज दे आर कैंसलिंग म्यूचुअली, सो दैट वी आर गेटिंग इंटेंसिटी, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो, एम्पलीट्यूड जीरो है मतलब इंटेंसिटी भी जीरो है। सो दिस इज द constructive and destructive interference. And one other thing is, what are the conditions for interference? Conditions for interference बोलो। जो एम्पलीट्यूड है वेव के फ्रॉम टू सोर्सेज वो इक्वल होने चाहिए। Yes, हम बच्चे सब एक एक पॉइंट बोलो, यहाँ पे भी लिखा है, देखें कुछ बोलो, जो सबको पता है। सोर्सेज है कोहेरेंट वो सोर्सेज होने चाहिए दोनों। हाँ, तो जो है इंटरफेरेंस वेव शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब इसके अंदर सारे आपका दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, वो हो गया। ओके, एंड यहाँ पे हम एक चीज जो दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखोगे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज, एंड जो इंटरफेरेंस होने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, दैट दे शुड हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी स्मॉल। ये दोनों पॉइंट मार्क करो, ये बहुत, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 एंड 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार जहाँ पे स्मॉल डी एंड कैपिटल डी के रिलेशन निकालते हैं, स्मॉल डी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपिटल डी, लिमिटिंग केस में इसी कंडीशन से हम यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द Excuse me, ma'am? शुड बी, यस मैम जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है वो तो स्मॉल रखते हैं ना हम? वो बहुत स्मॉल होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज दैट इज द टू स्लिट्स जो होता है वो बहुत कम होता है, स्मॉल डी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो सोर्स एंड द स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कैपिटल डी में लिखते हैं, दैट डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी। ठीक है, वो दैट इज द मेन प्राइम कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चे, अभी अगर टाइम दिखा रहा है 3 मिनट्स का, तो फिर से आप सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना। ओके, ज्वाइन कर लेना, अभी हमारे पास और भी टाइम है, आप ज्वाइन कर लो तो वी कैन कंटिन्यू विद द क्लास, एंड आई कैन यस मुझे स्क्रीनशॉट, हर्षित प्रेजेंट हो? हेलो, so can anyone send me screenshots to my personal number? ग्रुप में नहीं सेंड करना, इसमें सेंड कर दो। ओके, सेंड कर दो। ओके, टाइम कम है, फटाफट सेंड कर दो बेटा। ओके, क्योंकि इसमें अटेंडेंस लेने के साथ डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर क्लास टाइम और कम हो जाएगा। ओके, और बच्चे किसी को कोई डाउट है, आपको डाउट तो ज्यादा नहीं होगा, कोई डिफिकल्टी हो रहा है बिकॉज ऑफ मी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन टेल मी। ओके, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर देयर, यू कैन शेयर विथ मी, आपको जो भी डिफिकल्टी है। ओके, नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट इज वही जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज अ वेव फ्रंट का डिवीजन से ये हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी दिस फिगर।
दिस इज इंटरफेरेंस बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, दिस इज वी आर कंसीडरिंग एनी सोर्स, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल होल एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक सोर्स से वी आर कंसीडरिंग लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड दैट लाइट, यहाँ से एक वेव फ्रंट इधर आया, दैट वेव फ्रंट इज अलाउड टू एंटर थ्रू द, एक सिंगल वेव फ्रंट इज अलाउड फ्रॉम ए नैरो सोर्स, पॉइंट सोर्स इज अलाउड टू एंटर थ्रू टू पॉइंट होल्स या फिर टू नैरो स्लिट्स हेल्ड साइड बाय साइड। बहुत ही कम डिस्टेंस S1 एंड S2 के बीच में, S1 एंड S2 आर द टू नैरो स्लिट्स जिसके अंदर एक ही वेव फ्रंट का दो पार्ट प्रोपेगेट किया। Now, according to Huygens principle, S1 can act as a source, S2 can again work as a source. So S1 से जो light निकला, that will coming from S1, इसका wave front इस direction propagate किया, इस direction में गया, S2 से जो light आ रहे, they will propagate along this direction. And when they will interfere on the screen, we can observe interference pattern. Okay? Because of this, on the screen we can observe interference pattern. So you can see this figure also. ये एक source है, लाइट आया, सोर्स से पॉइंट सोर्स के अंदर लाइट प्रोपेगेट किया, एक ही वेव फ्रंट का दो पार्ट एंटर, S1 से जो आ रहे थे उसी का एक वेव फ्रंट कहां पे एंटर किया, S1 एंड S2, देन S1 से फिर से वेव फ्रंट निकला, S2 से फिर से वेव फ्रंट निकला, देन when they are superposing with each other, then we are getting alternate bright and dark fringes on the screen. Okay, and center point में what we are getting a bright fringe, and उसके बाद फिर dark आते हैं, उसके बाद again bright आता है, दोनों साइड में फिर ऊपर ऊपर डार्क ब्राइट, सेंटर के बाद फिर से नीचे भी डार्क ब्राइट। सो अकॉर्डिंगली वी कैन आल्सो गेट अ नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड इसी को ही कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, सो another or most important thing in this is that is what I mean by phase difference and what I mean by path difference. phase difference क्या होता है, path difference क्या होता है, path क्या है, suppose we are saying light is coming from two sources, ये जो दो सोर्सेज आ रहा है एट दिस पॉइंट P, S1 से लाइट गया एंड लाइट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम S2, सो S1 से एंड S2 P में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों, सो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, S2P माइनस S1P, वही पाथ के जो डिफरेंस है, दैट पाथ डिफरेंस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। एंड इसी चीज को अभी हम लेंथ की यूनिट में लिखेंगे तो वो लैम्डा की मल्टीपल में आता है। एंड व्हेन वी राइट द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ phase angle, then that is known as the path difference, phase difference. So phase difference कितना होता है, phase difference is क्लास ले लो, इसमें हो रहेगा। okay. ओके, सो आज तो आपका ऑलमोस्ट रिपीट वाला क्लास था एंड तो थोड़ा सा मैंने फास्ट बता दिया सारी चीज, फिर भी किसी को कोई डाउट है वी कैन डिस्कस। ओके, पर्सनल भी आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, नो इशू। ओके, सो अभी आगे आपका फेज डिफरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस क्या है।
Okay, then we'll discuss the phase difference, path difference. सबको पता है Yes, path? ma'am. हाँ, पाथ होता है इन द यूनिट ऑफ लेंथ, जो लैम्डा की फॉर्म में मेजर होता है। जब हम फेज डिफरेंस के फॉर्म में निकालते हैं, जनरल जब हम लिखते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t एंड y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है? ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, सो दैट इज ए एंगल। एंड एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं? फ्रॉम पाथ, दैट इक्वल्स टू 2 pi by lambda into path difference, that will give you the required phase difference। यहाँ पे लिखा है phase difference equals 2 pi by lambda into path difference। so वही चीज ही आपका होता है phase difference। so दोनों के बीच में phase को अगर मेजर करेंगे, वो प्रैक्टिकली पहले हम path से लेते हैं, देन उसको 2 pi by lambda से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड path difference, phase difference। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस जो होता है वो दैट इज बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स। That is how you can get interference होने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? That is how you can get two coherent sources, and that the coherent sources होता है, we can obtain the coherent sources by means of two methods। That is, one is division of wavefront and another is division of amplitude। Okay, so division of wavefront and division of amplitude से we can calculate the, you can get two coherent sources। So accordingly, the technique of interference, जब हम बताते हैं how to get the two coherent sources, so that is known as the technique of interference। Accordingly, the technique of interference is of two types। Technique of interference मतलब उसी को हमने बता दिया, types of interference, how you can enter the type of interference, that is your two types। One is interference by division of wavefront and second is interference by division of amplitude। Okay, so these are the two types of interference। So one is known as, बताओ वेवफ्रंट डिवीजन क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड डिवीजन क्या होता है, इसमें लिखा है, पढ़ो, समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या हमने बोला, वो जो वाईडीएस में होता है, यंग्स डबल स्लिट में जो चीज होता है, दैट इज योर इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। वेवफ्रंट का दो पार्ट को वी आर कंसीडरिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम अ सिंगल वेवफ्रंट फ्रॉम ए नैरो सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय पासिंग थ्रू टू स्लिट्स क्लोजली प्लेस्ड साइड बाय साइड। वेव्स फ्रॉम दीस टू सोर्सेस आर when waves from these two sources are interfered, then it is possible to get interference pattern। and यहाँ पे क्या है, always interference by division of wavefront में you always need a narrow source of light। ये सबको पता है narrow source किसमें जरूरत होती है, it is required in the case of division of wavefront। wavefront आ गया मतलब narrow source या point source से ही होगा। okay, and interference by division of amplitude में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग चीज है, न्यू चीज है। इसमें क्या है, एक ही वेव का एक लाइट आएगा, दैट इज अलाउड टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एट ए सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे एंड डिफ्रैक्टेड रे, ये सब डिफरेंट पाथ प्रोपेगेट करके दे विल ट्रैवर्स डिफरेंट पाथ, एंड व्हेन देयर डिफरेंट पाथ ऑफ द सेम वेव फ्रंट इज अलाउड टू इंटरफेयर, देन इट इज पॉसिबल टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे, जब इसका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे खाली रिमेंबर वन थिंग, इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में वी ऑलवेज नीड ए ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे नैरो सोर्स से काम नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट। एंड इसका मेन एक्सपेरिमेंट एग्जांपल में पढ़ेंगे, दैट इज न्यूटन्स रिंग। एंड इसमें हम पढ़ेंगे दो चीज, एक तो वाईडीएस पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और एक है फ्रेसनेस बाइप्रिज्म। ये भी ऑलमोस्ट हमने पहले क्लास में हो गया था हमारे। सो दिस इज इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। यहाँ पे वही चीज है जो वाईडीएस में होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में। इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड विल गेट, दिस इज द इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें एक सोर्स से लाइट आया, ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऊपर गया, नीचे रिफ्लेक्टेड पार्ट गया, इसका एक पार्ट फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर एक पार्ट ऊपर गया और एक पार्ट इधर गया। व्हेन दे आर अलाउड टू इंटरफेयर, then we are getting the interference pattern। so we are not discussing this topic right now because ये भी और टाइम लेगा। ये टॉपिक जब स्टार्ट होगा कहाँ पे, at that point we will discuss this thing। okay, now let us consider the theory of interference of fringes। मतलब this is the derivation of your Young's double slit experiment में। हाँ बच्चे, अभी से अभी तक जो चल रहा था ना, अभी आपने अगर नोट नहीं किया पहले से तो अभी नोट करना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी यहाँ से फिर आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, देन स्टार्ट नोट फ्रॉम दिस पॉइंट। सो यहाँ से लिखो
हेडिंग दे दो, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस। देन फर्स्ट क्या है, दिस इज योर सोर्स S1, अनदर इज योर सोर्स S2। So one source is S1, other is your S2, and ये कहाँ से बने? We are getting the two source coherent sources. These are the two coherent sources, and एक ही wavefront का दो पार्ट। जो पहले हम फिगर दिखा रहे थे, according to that, these are the 2 points on the same wavefront. Okay, so S1 is one source, S2 is another source, and this is PL is a screen, this is a screen, and we have to find a point. Let us consider P is any point on the source, and what is the point here? Is P point का whether we'll get a point of maximum intensity or minimum intensity at this point P. We are going to calculate that thing. For this, we have to calculate the part difference. Okay, ये डेरिवेशन में करूँ या पीपीटी से हो जाएगा? बोलो हाँ बच्चे, जैसे बोलोगे we'll consider that thing. हाँ सोफिया, note down this thing. Okay, S1 P, S2 P दोनों पॉइंट है, and O and P से डिस्टेंस कितना हमने कंसिडर किया है? The distance equals to YN. So बताओ हाँ बच्चे, S1 P कितना होगा, S2 P कितना होगा? Yes, 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 neutral self. Okay, लिखो. So what we are considering, ये जो डिस्टेंस है S1 S2 का वर्टिकल डिस्टेंस S1 S2 एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना है? देखो, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस. ओके, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2. तो S1 P का वैल्यू कितना होगा, S2 P का वैल्यू कितना होगा? S2P का d square plus x plus d by 2 the whole square. हाँ, तो दिस इज S2P square equals to d square plus yn plus d by 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने नाम दिया है yn, एंड S2P इधर से कितना है बड़ा S2P के लिए, दिस इज इन द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंड दिस साइड का वैल्यू इज d, एंड इस साइड का वैल्यू कितना होगा? दिस इज yn plus d by 2. हां मैम, आप साउथ फोर नहीं Yes. yn plus d by 2 का होल स्क्वायर. Mom was not doing anything. Mom was never any mom on that board. Mr. Rani. Yes. मैं तीन फुट पर है, अगर आप यहाँ आ जाओगे आप तो लगा सोगे बात. कितना होगा? नहीं तो खतर खाएंगे. Okay, note down the value of S2P minus S1P. S2P square minus S1P square का वैल्यू कितना आ रहा है? 2xd upon में SP2 plus S1P. One time. हाँ बोलो. Mutual fund. क्या मैम? Mutual funds करो सिर्फ उसमें ना. सिर्फ असो फ्रैंकलिन. सोफिया का माइक ऑफ. Who is talking? Yeah, this is so not just I will tell me for not you Tata Digital India Group. Start this कारण मगर सिर्फ उसमें मैम इस बच्चे को कुछ कर दो हम किसी का माइक ऑन है. माइक ऑन है. जो बाहर होता है फ्रैंक इंडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप. सोफिया का माइक ऑन है. ये सोफिया नहीं, सोफिया मुझे पार्टिसिपेंट में सर्च कर रही थी. हम सोफिया का है क्या? सोफिया था. यस सोफिया. हो गया मैम, ऑफ हो गया. यस मैम. चलो बेटा, माइक अपना जब है तो क्लास है तो आप ईयरफोन लगा के काम करो अपना.
ओके, तो ईयरफोन यूज कर लो सो दैट कोई डिस्टर्बेंस है तो ना इट विल अफेक्ट यू ना अफेक्ट ऑल ऑफ अस, किसी को अफेक्ट ना करे. ओके, इट्स बेटर यू यूज ईयरफोन. ओके, चलो अभी देखो S2P माइनस S2P स्क्वायर, ये समझ में आया? दैट इज d स्क्वायर प्लस yn प्लस d/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू d. ये समझ में आया बच्चे? S2P स्क्वायर कितना आया, S1P स्क्वायर Yes, कितना आया? ये आ गया तो फिर इसका वैल्यू फटाफट आ गया, माइनस कर लोगे तो विल गेट द वैल्यू इक्वल्स टू 2yn d. दिस इज S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर 2yn d, एंड इसको हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में पुट किया, सो दैट वी आर गेटिंग S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2yn d अपॉन S2P प्लस S1P. एंड यहाँ पे हमने एक कंडीशन क्या यूज किया है, एक कंडीशन क्या यूज किया है, दैट इज दिस इज, क्या कंडीशन यूज किया है, S1 and S2 are distance between them is too small, so that S2P is nearly equals to S1P, and इसको हमने क्या ले लिया, that value equals to capital D. Okay, so इसको हमने क्या पुट किया, capital D, so that S2P minus S1P equals to 2yn d upon capital D we are getting. Okay, so this is the expression for your part difference. So part difference इतना आया, and from this we can get the value of yn equals to n lambda d upon d. Okay, so this is part difference in case of Young's double slit experiment. अभी यहाँ पे you can see in this figure, yellow are the bright fringes and black are the dark fringes, and intensity यहाँ पे सबका same है. Intensity of all the fringes are equal, and in this figure also you can observe alternate bright and dark fringes we are getting, and we can calculate the intensity of this. From intensity also you can calculate by using this. So आप सबका टाइम हो गया है, so we'll continue or we'll stop. Next आपका क्लास होगा, so we'll stop here या कंटिन्यू ये कर ले, बोलो स्टॉप. ओके, सो हाँ क्लास है ना, कभी कभी पूछ रहे, 5 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगी. एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल मुझे कौन बताएगा क्लास में, इसको फटाफट मुझे 5 मिनट के अंदर इसको बताओगे, यही चीज कोई. ओके, फटाफट कोई मुझे कल बताओगे. ठीक है. हाँ सोबिया, कोई मुझे बताओगे फटाफट, आप कैसे होता है ये बताओगे, क्योंकि सबका हो चुका है, सो दैट हम कल आगे का टॉपिक करेंगे. हाँ सोबिया, क्लियर हुआ? हेलो, हम लीव करते हैं. चलो लीव कर दो, मैं एम एंडिंग द मीटिंग. ओके, चलो. All of you leave now.